माननीय मंत्री जी का आगमन हो गया है। यस सर। बैठने दीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे विघ्नहर्ता गणेश, जिनका तेज 100 करोड़ सूर्य के समान है, सदा हमारे सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण करें। नमस्कार and a very good evening to everyone. On this momentous occasion of inauguration of ERP implementation PAN Coal India, on behalf of Coal India family, I would like to extend a warm and cordial welcome to you all. It is our privilege to have the who's who of the national coal mining industry under one roof. We are honored to have with us the Honorable Union Minister for Coal Mines and Parliamentary Affairs, Shri Prahlad Joshi ji. Our heartiest welcome, sir. Your presence is crucial for us. It is our privilege to have with us Shri Rao Sahab Patil Danve ji, Honorable Minister of State for Coal Mines and Railways. On this momentous day, we extend a warm welcome to you, sir. I would also like to welcome Secretary Coal, Government of India, Dr. Anil Kumar Jain, Chairman Coal India, Shri Pramod Agarwal, Additional Secretary Coal, Government of India, Shri Vinod Kumar Tiwari, Additional Secretary Coal, Government of India, Shri M. Nagaraju, Joint Secretaries from the Ministry of Coal, Chairman and Managing Directors of CIL and its subsidiaries, Functional Directors of Coal India Limited and its subsidiaries, ERP Consultant from MDI, Dr. M.P. Jaswal, who is now Director IIM Sambalpur, Shri Piyush Singh, Country Head, Accenture, other dignitaries from Ministry of Coal, Tech Mahindra Limited, Tata Communication, SAP, Accenture, all those who are joining this event live across subsidiaries of Coal India Limited, seniors and colleagues, it's an honor to welcome you all to today's event. अब मैं आग्रह करूंगी सचिव कोयला डॉक्टर अनिल कुमार जैन को कि वे हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री कोयला खान एवं सांसदीय कार्य मंत्रालय श्री प्रहलाद जोशी जी का पुष्प गुच्छ और शॉल से स्वागत करें। मैं पुनः आग्रह करूंगी हमारे कोयला सचिव जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री कोयला खान एवं रेल मंत्रालय श्री राव साहब पाटिल दानवे जी का पुष्प गुच्छ और शॉल से स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं आग्रह करती हूं कोल इंडिया के अध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल सर को कि वे हमारे कोयला सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन सर का पुष्प गुच्छ और शॉल से स्वागत करें।
धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करूंगी निदेशक तकनीकी कोल इंडिया लिमिटेड श्री वीरा रेड्डी सर को कि वे कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। Thank you, sir. Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. The journey of transformation started with lighting of the auspicious lamp in January 2021 for the first phase. This has now spread like happiness throughout Coal India Limited. Lighting a lamp before a ceremony spreads divine grace. The lamp also shows how to rise upwards and dispel darkness. May we request the Honorable Union Minister for Coal, Mines and Parliamentary Affairs, Shri Prahlad Joshi ji, Honorable Minister of State for Coal, Mines and Railways, Shri Rao Sahab Patil Danve ji, Secretary Coal, Dr. Anil Kumar Jain sir, and Chairman Coal India Limited, Shri Pramod Agarwal sir, to proceed for lighting of the ceremonial lamp. Asto ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma mrutangamaya Om Shanti Shanti Shanti. Now may I request everyone to please rise for CIL Corporate Geet. हमारे मिले कदम हमारा चौड़ा सीना विशाल कंधे हमारे हाथ फौलाद हमारे हम हैं आग हम हैं बिजली हम हैं शक्ति की खान हम हैं कोल इंडिया हम अंधेरे से खोद लाते हम उजाले खुशियों के चट्टाने फोड़ जुटाते हम ईंधन लाखों के हम हैं कोल इंडिया हम कदम मिले चले ताल मिलाकर साथ पकड़ कर बाहें हम लाए काला हीरा हमसे उज्जवल देश की राहें हम हैं आग हम हैं बिजली हम एकता की खान हम हैं कोल इंडिया हम It is said that the wings of transformation are born of patience and struggle. Previous year, on January 21st, the first phase of implementation of ERP in CIL HQ, including NEC, Mahanadi Coalfields Limited and Western Coalfields Limited, was inaugurated by Honorable Minister of Coal, Mines and Parliamentary Affairs, Shri Prahlad Joshi ji. Around
15,000 users across Coal India and its subsidiaries have gradually picked and learned the new and uniform way of performing their jobs with data, which is reliable, accurate, real-time, and entered at source. We Coal Indians are moving on the path to perfection. In the words of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Digital India means opportunity for all, facility for all, participation of all. It also means a transparent system which attack on corruption. With today's inauguration of Pan-CIL ERP, all the 7 modules are functional in Coal India Limited, which is going to be a big step towards Digital India. Under the leadership and guidance of Chairman Coal India, Shri Pramod Agarwal sir, ERP could be implemented by overcoming all odds, be it pandemic or inherent demographic constraints. ERP implementation has encouraged we Coal Indians to develop and reskill ourselves. We Coal Indians are committed to make ERP implementation a roaring success. We firmly believe on the sayings of Swami Vivekananda to never say no, never say I cannot, for you are infinite. All the power is within you. You can do anything. May I request Director Technical Sir to give us a brief on ERP. Honorable Minister of Coal, Mines and Parliamentary Affairs, Prahlad Joshi ji sir. Honorable Minister of State for Coal, Mines and Rail, Sri Rao Sahab Patil Danve ji sir. Dr. Anil Kumar Jain sir, Secretary Coal. Sri Pramod Agarwal sir, Chairman CIL, and other dignitaries present. I extend a warm welcome to you all. CIL is on a journey to transform, to implement ERP in CIL. The journey began in 2018. It has now reached the point where ERP has been implemented across Coal India. From the initial activities of master data collection, cleaning, unification, preparing standard processes through the global blueprint document, digital technology has infiltrated every aspect of business. It has become the pivot in today's world. In this journey, we must remember that transformation can't be delegated. Every individual has to own it. We at CIL need to engage, embrace, and adopt new ways of working with global standards. The day has finally arrived when ERP implementation throughout the CIL is being inaugurated by none other than the Honorable Minister, Sri Prahlad Joshi sir. So, change is needed to have one India, Coal India database, one Coal India database, integration beyond barriers, data harmonization, standard business processes from islands to real-time accessibility, unified, integrated, accurate, traceable, real-time. The main objective is to have one CIL, one ERP. This implementation coverage is that it is entire Coal India, 7 functional modules, global business blueprint based approach, integration with multiple third-party systems. ERP implementation Pan Coal India accomplished in 2 phases. In phase 1, the system integrator is Mrs. Tech Mahindra, started in 31/7/2018, and went go live on 1/4/2021. It was inaugurated by Honorable Minister Coal, Mines and Parliamentary Affairs, Sri
Prahalad Joshi sir. Phase 2, it is system integrator is Accenture. At 6 subsidiaries, they are BCCL, CCL, CMPDL, ECL, NCL, and SECL. Again, the phase 2 has been implemented 14 months ahead of the schedule. Again, from 1/8/2021 onwards, all the 6 subsidiaries went go live. In total, Coal India now all 7 functional modules are being implemented. Now it is the unification of all the database, 85 mining areas, 345 mines, 625 processes, 20 lakhs data records, and 15,000 users. One of the largest among CPSEs in ERP implementation and cloud infrastructure for DC and DRC among CPSEs. In shortest duration, PAN Coal India in 34 months out of scheduled 51 months. These are the key benefits envisaged: uniform processes, integrated business functions, centralized data governance, real-time data visibility, optimized inventory levels, system-driven budgetary controls, better coordinated maintenance functions, reports and dashboards, and finally to become single source of truth, to have better communication and collaboration. Way forward is to have enhanced system with maturity and robustness. Parallelly, we are also going for digitalization, analytics, for augmented performance through improved data reliability and accuracy, enhanced system maturity and robustness, for better planning, monitoring, and decision making. Once again, I welcome you all for this. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir, for giving us a brief description of this wonderful journey of ERP. अब मैं कोल इंडिया परिवार के मुखिया श्री प्रमोद अग्रवाल सर से आग्रह करूंगी कि वे इस सभा को संबोधित करें। आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय राज्य मंत्री साहब, आदरणीय सचिव कोयला मंत्रालय, हमारे पार्टनर्स एक्सेंचर, टाटा कम्युनिकेशन, टेक महिंद्रा के उपस्थित प्रतिनिधिगण, मैं विशेष रूप से नाम लेना चाहूँगा प्रोफेसर जायसवाल का, जिन्होंने हर कदम पर कोल इंडिया को मार्गदर्शन दिया और जिनके सहयोग के कारण इस बड़े काम को हम लोग पूर्ण कर पाए। एवं उपस्थित मेरे साथियों, जब मैं ज्वाइन किया था तब ERP पर काम शुरू हुआ था और मुझे बताया गया कि 1 नवंबर को माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिया था कि ERP को जो आप लोगों ने 51 महीने का किया है उसको कंप्रेस किया जाए। मेरे लिए ERP पर कार्य करना एक बिल्कुल नया ही एक्सपीरियंस था। यद्यपि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का PS कुछ साल मध्य प्रदेश में रहा था, तो इसलिए शब्दावली से जरूर परिचित था, लेकिन उसमें क्या होता है इसके बारे में जानकारी विशेष नहीं थी और शायद आज भी नहीं है। लेकिन यह तय था कि इसको किसी तरह से कंप्रेस करके जितनी जल्दी लागू किया जाए उतना ही अच्छा रहेगा। पिछले साल 20 या 21 जनवरी को इसी हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 2 सब्सिडीज़ में ERP को गो लाइव करने का कार्य किया गया था। माननीय मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। उस दिन हम लोगों ने ये घोषणा की थी कि 15 अगस्त तक बाकी सभी चरणों का भी गो लाइव कर देंगे और इस कार्य को हम लोगों ने 1 अगस्त को पूर्ण कर लिया था। लेकिन ऐसा लगा कि इस समय गो लाइव का मतलब शायद मुझे पहली बार समझ में नहीं आया था, इसलिए मुझे लगा कि गो लाइव करना उद्देश्य नहीं है, इस सिस्टम को ऐसे फॉर्मेट में लाना उद्देश्य है जहां पर यह कह सकें कि इसके 7 मॉड्यूल हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। इसलिए उस कार्यक्रम को हमने पोस्टपोन किया और हमारा उद्देश्य था जनवरी-फरवरी तक इस कार्यक्रम में इसको पूरी तरह से लॉन्च किया जाए। आज मुझे बताते हुए यह खुशी है कि इस कार्यक्रम को, जिसको कि हम लोगों ने सोचा था 51 महीने में हम लोग पूर्ण करेंगे, हम लोगों ने लगभग 15 महीना पूर्ण कर लिया है और CIL की सभी सब्सिडीज़ में आज के दिन
लगभग ईआरपी लागू हो चुका है। ईआरपी लागू हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि कल सारा काम ईआरपी में हो रहा है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है और ईआरपी जो जानते हैं उनको पता है कि इसकी मैच्योरिटी आती है, धीरे धीरे सिस्टम में मैच्योरिटी आती है, आपकी डिमांड बढ़ती जाती है। जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था उस समय जो स्थितियाँ और जो क्वेरीज हम लोगों ने सोची थी, आज के दिन जब फील्ड में इंटरेक्शन होता है तो पता लगता है उससे कई गुना ज़्यादा हम लोगों को इंटरेक्शन कर, उससे कई गुना ज़्यादा हम लोगों की क्वेरीज बन रही हैं और उसको धीरे धीरे मैच्योर करना पड़ेगा। लेकिन यह बात हो चुकी है कि डाटा आज पूरी तरह से हमारे यहाँ ईआरपी में एंटर होने लगा है। इसके दूसरे फेज में एक बात और आनी चाहिए। आज के दिन अगर मेरा डोजर, डंपर या शॉवेल चल रहा है तो उसका डाटा वहाँ से निकलकर कोई आदमी एंटर करता है। स्थिति यह होनी चाहिए कि हमारे सिस्टम को उस डोजर या शॉवेल से डायरेक्ट बात करना चाहिए और उसके डाटा को यहाँ पर हम डायरेक्ट मशीन से मशीन में यदि आएगा तो उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। और डंपर के डाटा को इस तरह से ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसके जो टीपीएमएस होता है उसके डाटा को भी सर हम लोग इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ताकि डंपर की इफिशियंसी कितनी है और उसमें कितना लोड लेकर। हमारा 240 टन का डंपर, हम ये मान लेते हैं कि 240 टन का डंपर है, इसलिए वो 240 टन मट्टी लेकर चल रहा होगा ओबी में। लेकिन जब डाटा एनालिटिक्स करेंगे तो पता लगेगा शायद 150 पौने 200 ही टन लेके चल रहा है। और ये डाटा जब तक हमारे पास नहीं आएगा और एक इंटीग्रेटेड वे में नहीं होगा, हमारी इफिशियंसी नहीं बढ़ सकती। एक 42 क्यूबिक मीटर का जो शॉवल हम खरीदते हैं 450 करोड़ 400 करोड़ रुपए का आता है, लेकिन ये क्या गारंटी है कि वो एक बार में 42 क्यूबिक मीटर मट्टी निकालता है? कोई गारंटी नहीं। जब तक उसका डाटा हमारे सिस्टम में डायरेक्ट नहीं आएगा तब तक ये प्रमाणित नहीं हो पाएगा कि किस प्रकार से हमारे सिस्टम्स काम कर रहे हों। और ये नेक्स्ट उद्देश्य होना चाहिए पूरे CIL का कि जो भी डाटा डायरेक्ट आ सके उसको हम लोगों को डायरेक्ट लेना चाहिए। आज सुबह की किसी एक मीटिंग में किसी सांसद जी ने या किसी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अनमैन्ड हमारे वेइंग मशीन्स होनी चाहिए। एक्चुअली उस पर हम लोगों को प्रयास करना चाहिए और हम लोग कर भी रहे हैं सर, कि मशीन का जो डाटा है, मतलब वेइंग मशीन का जो डाटा है, वहाँ पर जो बैठा हुआ आदमी है वो एंटर न करे, वो अपने आप एंटर हो और उसके बाद वो डाटा स्वयं हमारे सिस्टम में चला जाए और वो सीधे धीरे धीरे ये परिस्थितियाँ आएंगी और जिस दिन ये आ जाएगा उस दिन CIL का डाटा हम लोग रिलायबल कह पाएंगे और उस दिन हम ये कह पाएंगे कि हमारा यह कार्यक्रम जो है पूरी तरह से सफल हुआ है। माननीय मंत्री जी ने पिछली जनवरी के प्रोग्राम में ये कहा था कि ERP पर अच्छे काम करने वाली सब्सिडी को विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाए। सर, हमने उसको 1 साल इसलिए टाला था कि केवल उस समय 2 ही सब्सिडी में काम हुआ था, लेकिन आज के बाद इस साल जो भी सब्सिडी अच्छी करेगी, माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग उसके लिए जो वार्षिक पुरस्कार होता है उसमें उस सब्सिडी को पुरस्कृत किया जाएगा और ये निश्चय ही आपस में प्रेरित किया जाएगा। सर, इससे ERP लागू करने से एक जो विशेष फायदा वो ये हुआ है कि हमारे सिस्टम्स जो है, हमारे प्रोसेसेस स्टैंडर्डाइज हो गए। अदरवाइज हमारी 7 सब्सिडीज में अलग अलग प्रोसेस चल रहे थे। कई बातें थी जो एक सब्सिडी फॉलो कर रही है, कई बातें थी जो दूसरी सब्सिडी, लेकिन चूंकि अब प्रोसेस यूनिफॉर्म हो गए हैं और उसका डाटा एंट्री यूनिफॉर्म हो गया है तो ये प्रोसेस अपने आप यूनिफॉर्म होते जाएंगे। और इसमें अगर हम लोग आगे और सोचें तो इससे प्रोसेस इंजीनियरिंग भी होती, री इंजीनियरिंग भी होती है और जिसके कारण ये पता लगेगा कि हम लोग किस प्रकार से अपने सिस्टम्स को सुधारें जो कि अक्रॉस द सब्सिडी लागू किया जा सके। इस प्रकार मैं मानता हूँ आज के दिन CIL के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, एक बहुत ही बड़ा लीप है, एक डिजिटाइजेशन के तरफ बहुत बड़ा लीप है और इसका अगर हम लोग उपयोग कर पाए तो निश्चय ही CIL को भविष्य में बहुत लाभ होगा। मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ कि इस कार्यक्रम में भागीदारी देने का मुझे मौका मिला। धन्यवाद। सभा को ERP और उसकी खूबियों के बारे में बताने के लिए धन्यवाद सर। नाउ मे आई रिक्वेस्ट Secretary Cole, Dr. Anil Kumar Jain sir, to address the gathering. आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय राज्य मंत्री जी, चेयरमैन कोल इंडिया, बाकी मेरे कोलीग्स, साथी लोग, आज वाकई जैसा कि प्रमोद ने कहा कि एक हिस्टोरिक इवेंट है। ERP के एडॉप्शन से कोल इंडिया उन सेलेक्ट लिस्ट ऑफ कंपनीज में शामिल हो जाता है जहां पे इस प्रणाली को, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वो अडॉप्ट किया गया है। मुझे याद है लगभग 7 से 8 साल पहले या उससे पहले ये SAP की तरफ से ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज
अखबारों के फर्स्ट पेज में एडवर्टीजमेंट वगैरह दिया करती थी इसके सॉफ्टवेयर के सप्लायर्स, और जो अडॉप्ट करता था कि नाउ वी आर ERP कंप्लायंट। तो कभी आई डोंट नो वेदर पब्लिक सेक्टर्स एवर गिव इट अ थॉट, बट कोल इंडिया हैज़ नाउ अडॉप्टेड इट। तो ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत गर्व का दिन है। इस इवेंट और इस उपलब्धि से एक चीज और बहुत बोल्डली सामने आती है कि कोल इंडिया बदल रहा है, बहुत बदल चुका, बट अभी भी और अच्छे से अच्छा काम करने की तरफ बढ़ रहा है। आज बाई चांस हम लोग बैक टू बैक 2 पार्लियामेंट्री मीटिंग्स में गए और सांसद थोड़े बेबाक होते हैं, उनका हक है, उनकी ड्यूटी है। तो 2 जगह हम लोगों को कुछ अच्छा, कुछ मीठा, कुछ बुरा सुनने को मिला। आप लोगों ने देखा होगा जो मीटिंगों में थे कि जब भी कोयले की बातचीत होती है तो हमेशा कोई वर्ड कोलगेट यूज करता है, नॉट कॉलगेट, कोलगेट। और कोई कि 2014 में, उसके पहले आवंटन में, फिर कोल इंडिया में कोयले की चोरी। तो अमूमन इस देश में अनफॉर्चुनेटली कोयले का जो भी इतिहास रहा वो कोई बहुत गौरव देने वाला नहीं रहा है। तो इन परिस्थितियों में जब आप ERP अडॉप्ट करते हैं, जब आप ऑटोमेशन करते हैं, जब आप ऑक्शन करते हैं, ऑक्शन प्रणाली में सुधार करते हैं, कुछ कम्युनिकेशन करते हैं, तो एक अच्छा लगता है और आप इन अ वे लोगों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि पुरानी बातों का हमें नहीं मालूम, लेकिन आज जो टीम है और जो लीडरशिप है, इट इज डिफरेंट एंड वी आर rightful claimant to be proud to be serving the nation, and all the team which comprises Coal India and the other subsidiaries is doing a great job, और किसी और पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर से हम लोग कम नहीं है। इस संदर्भ में मैं एक बात आप लोग को और कहना चाहूँगा कि जो आज इनडायरेक्टली मंत्री जी ने भी कंसल्टेटिव कमेटी के मीटिंग में कही कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, आप लोगों ने, कुछ सांसदों ने भी कहा और मंत्री जी ने भी उसको सपोर्ट किया। जैसे आज मीटिंग थी ऑन एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस एट्सेट्रा, तो सबने कहा कि आपने प्लांटेशन का अपना टारगेट डबल कर लिया है, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी आप कर रहे हैं, रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सांसदों को बुलाते नहीं हैं। एक्चुअली सांसदों को न बुलाना या सरपंच को न बुलाना, ये एक आप लोग के कार्यशैली में है। आप लोग काम इतना सारा करते हो और हल्ला इतना सा मचाते हो, जबकि कई जगह पे इतना काम होता है, हल्ला इतना मचाया जाता है। तो ये आप लोगों को सोचना चाहिए कि कम्युनिकेट करना, सांसदों को बुलाना, कहना प्लीज आके उद्घाटन करिए, देखिए, कोई पब्लिकेशन निकालना, दिल्ली से मीडिया वालों की टीम महानदी में ले जाना, SCCL में ले जाना, प्लांटेशन दिखाना, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ड्यूटी। एज आई सेड टुडे इन द मीटिंग कि पर्यावरण को लेकर कोयला सबसे बड़ा कल्प्रिट माना जाता है। अभी प्रधानमंत्री जी के निर्देश हैं कि इंडिया एट 2047 की योजनाएं बनाई जाएं। शायद इस बार 15 अगस्त तक प्रधानमंत्री देश के सामने 2047 का एजेंडा रखेंगे, क्योंकि अगले 75 साल हो गए, 25 साल और, तो हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं। बाकी सभी मंत्रालय अपने प्लान्स में ये बोलेंगे कि आज हम यहाँ हैं, कल हम वहाँ पहुँचेंगे, हमने इतने स्कूल बनाए, इतने बनाएंगे, शैक्षणिक स्तर इतना बढ़ेगा, इतनी मेट्रोज, इतनी सिटीज़, ये वो। यही एक मंत्रालय है जो शायद जो कहेगा हम आज यहाँ हैं, कल हम यहाँ हो जाएंगे। तो वी हैव टू recreate, reinvent our business because we are perceived to be the culprits. तो ऐसे में आप एनवायरनमेंट में काम करते हैं, आप ERP लाते हैं, आप नॉलेज बेस्ड कंपनी बनते हैं। जब आज सुबह स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के लिए कल तैयारी हुई तो पता चला कि ड्रोन्स, मैं WCL में गया था, मुझे बताया गया कि ड्रोन तो बहुत ऑर्डिनरली यूज कर रहे हैं आप,
बहुत सारे सप्लायर्स हैं नागपुर में, किसी को बुला के आप अपना वो भी देख लेते हैं, किसी को बुला के फॉरेस्ट कवर देख लेते हैं. सो दीज आर वेरी वेरी गुड थिंग्स. पीएम को तो बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो पीएम ऑलवेज टेक्स प्राइड इन इट. ये देश चेंज हो रहा है. तो मेरा आप लोगों से कहना है कि कम्युनिकेशन के बारे में आप लोग पीछे न हटे. बिना किसी कंपनी का नाम लिए, जैसा मैंने एक दिन आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था कि एनटीपीसी उन्होंने कोल माइन में एक वुमन डंपर ड्राइवर बनाई. उन्होंने फटाक से फोटो कि ये महिला ये काम करती थी, घर में काम करती है, डंपर ड्राइवर है. आप लोगों ने उसके रिस्पांस में आज महानदी ने डाला कि बहुत सारी महिलाएं आपके एक्सप्लोजिव हैंडल कर रही हैं और एक्सप्लोजिव का काम कर रही हैं. एक्सप्लोजिव का काम हैंडल करना इज एनी डे मोर क्रेडिटेबल एंड वर्दी ऑफ प्राइड देन ड्राइविंग अ डंपर. और डंपर वगैरह तो आपकी यहाँ महिलाएं बहुत समय से चला रही है. तो एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी आप लोग जरूर करिए. अदरवाइज आपको कोई ना कोई एमपी मेरे यहाँ ऐसा है, मेरे यहाँ ऐसा है. एंड फाइनली व्हाट प्रमोद सेड, यू सी दिस सिस्टम इज नॉट इंटेलिजेंट, इट इज अ ऑटोमेटेड मैकेनाइज सिस्टम. ये डेटा इकट्ठा करेगा, ट्रांसफर कर देगा. इंटेलिजेंट तो आप लोग हैं. तो ये डेटा बिकम्स एन इनपुट टू डिसीजन मेकिंग. तो ये जो बहुत अच्छी बात है आज जो चर्चा हुई है कि आगे को चल के इनाम दिया जाएगा, तो इसको एक्चुअली जीएम्स, डायरेक्टर्स, सीएमडीज हैव टू यूज इट. सो द जीएम्स हैव टू, मेरा तो ये कहना है कि जो एक्सेंचर, टाटा कम्युनिकेशन, टेक महिंद्रा की टीम है, दे शुड नाउ एजुकेट द जीएम. इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड अफेयर. प्रमोद ने कहा ज़्यादा समझ में नहीं आता है, मेरे तो उससे भी कम समझ में आता है. हाउ कैन these 7 modules, 8 modules help you in decision making? अब वो इतनी सारी हैवी HEMM खरीदी जाती हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या है, डीजल कितना, डीजल की चोरी की बड़ी चर्चा होती है. कोल इंडिया में इन जनरल डीजल के यूजर्स बहुत हैं और गाड़ियों की एफिशिएंसी ऊपर नीचे होती रहती है. ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता. तो अब ये ERP ने आपको एनेबल किया है. लेकिन फ्रैंकली मैंने आपका व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम देखा, VATS, आई एम नॉट वेरी हैप्पी. मैं शुरू में ज्वाइन करते ही मैं सोनपुर बाजारी वगैरह गया था, तो मैंने देखा कि आपके क्षेत्र में जितनी गाड़ियां चल रही हैं वो सब दिखती हैं उसके ऊपर. लेकिन और बताया गया कि एक SMS जनरेट करती हैं, गाड़ी इधर जाए उधर जाए. बट उसके बावजूद भी इतनी शिकायतें चोरी चपाटी की. देखिए वो बात अलग है कि स्टेट गवर्नमेंट के लोग उस पर एक्शन न लें, पर कम से कम हम अपना कॉलर साफ रखें. हम ये बोलें कि हमने इस महीने में 20 चोरी के केसेस थाने में बताए, 25 वहाँ बताए. जहाँ चोरी ज़्यादा हो रही थी वहाँ हमने एक माइनिंग ओपन कर दी, कुछ कर दी. सो एनीवे, पॉइंट इज टेक्नोलॉजी इज ओनली एन एनेबलर, बट इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट then technology is going to be useless. So today, let me congratulate the entire Coal India team and also wish the best कि this आज जो हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं इसका इस्तेमाल किया जाए. थैंक यू. थैंक यू सर. हमारे कंपनी का मनोबल बढ़ाने के लिए सहृदय धन्यवाद सर. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय राज्य मंत्री कोयला, खान एवं रेल मंत्रालय श्री राव साहब पाटिल दानवे जी से कि वे आशीर्वचन देकर कोयला परिवार को अनुग्रहित करें. कोल इंडिया और सभी सहायक कंपनियों में ERP प्रणाली प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी जी, खान और कोयला मंत्रालय के सचिव अनिल कुमार जैन, कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद जी अग्रवाल, उपस्थित सब अधिकारीगण, भाई और बहनों. साथियों, इस समय सभी क्षेत्र में स्पर्धात्मक वातावरण होने के कारण आज टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ता जा रहा है. जिसके पास सबसे तेज जानकारी उपलब्ध है वही इस वैश्विक स्पर्धा में
अपना स्थान बना सकता है और आगे बढ़ सकता है। इस चुनौती को समझते हुए कोल इंडिया और उनकी सहायक कंपनियों ने ERP प्रणाली लागू करने का बेहतरीन निर्णय लिया है, जो न केवल बहुत आवश्यक है बल्कि एक प्रशासनिक कदम भी है। इस प्रणाली को लागू करने के लिए पहले 51 दिन की अवधि प्रस्तावित थी, परंतु मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि ये कार्य मात्र 15 महीने के भीतर ही पूरा कर लिया गया। इस कार्य के लिए मैं कोल इंडिया को बधाई देता हूँ। इस प्रणाली के लागू होने के बाद हमारी सभी कोयला कंपनियों के निर्णय लेने की क्षमता में और तेजी आएगी। इसका सीधा लाभ हमें विश्व स्तर पर मुकाबला करने में होगी। कोयले का स्टॉक हो, कोयले की ऑर्डर बुकिंग पोजीशन हो, कोयले का दिन प्रतिदिन उत्पादन हो, कोयले की बिक्री हो, कोयले से आने वाली धनराशि हो, चाहे कर्मचारियों की संख्या हो, इस प्रकार की तमाम जानकारी अब हमें ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इस प्रणाली के कारण कंपनियों के संसाधनों का उपयोग इष्टतम होगा। इस प्रणाली का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने से हमारी सभी कोल कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्धात्मक होगी और कंपनियों की आर्थिक स्थिति और भी बेहतर होगी। अंत में मैं इस कार्य से जुड़े सभी कर्मचारियों ने जो मेहनत और कष्ट किया और संस्थाओं ने किया, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, और जिन्होंने इस प्रणाली को बहुत ही समय पर तैयार किया, उन्हीं को भी मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन के लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ। Drawing inspiration from the Cajun strategy that not a day should go by without some kind of improvement being made somewhere in the company, under the leadership of our chief guest, we at CIL are doing just that. In Coal India Limited, new initiatives and number of progressive and forward-looking reforms are taking place. It is my proud privilege to invite our chief guest, Honorable Minister for Coal, Mines and Parliamentary Affairs, Shri Prahlad Joshi ji, to inaugurate in our ERP implementation. Yes, sir. We are witnessing the history being created today. Thank you, sir. अब हम आपको ERP के कुछ एक प्रक्रियाओं की झलक दिखाएंगे। The first process is of production planning module from Central Coalfields Limited. मैं विकास कुमार, असिस्टेंट मैनेजर बरकासयाल एरिया सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में कार्यरत हूँ। मैं आप सभी को SAP में प्रोडक्शन कंफर्मेशन और शिफ्ट नोट जनरेशन दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रोसेस सीट में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग और होलिंग का डाटा कैप्चर हुआ है। अब मैं इसका शिफ्ट नोट जनरेट कर रहा हूँ। इस शिफ्ट नोट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर येलो बुक के फॉर्म 1D के अकॉर्डिंग सब्सिडरी का नाम, एरिया का नाम, माइन का नाम, प्रोडक्शन डेट और प्रोडक्शन शिफ्ट डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं किस एक्सवेटर ने किस बेंच पे कितना कोल एक्सवेट किया, डंपर सेक्शन में किस डंपर ने किस बेंच पे कितने ट्रिप्स किए और कितना कोल डंप किया, ड्रिलिंग सेक्शन में किस ड्रिल मशीन द्वारा किस बेंच पे कितने होल्स ड्रिल किए गए, और ब्रेकडाउन रिपोर्ट में कौन सी मशीन कितने टाइम के लिए ब्रेकडाउन की ये डाटा डिस्प्ले हो रहा है। थैंक यू। The next process is of plant maintenance module from BCCL. नमस्कार, माई सेल्फ वीरेंद्र कुमार, असिस्टेंट मैनेजर एक्सकवेशन BCCL। यहाँ पे एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑर्डर बनाएंगे 250 आवर्स का एक इक्विपमेंट के ऊपर। न्यू ऑर्डर क्रिएशन में जाके ऑर्डर टाइप ZPM2 लेंगे, इक्विपमेंट का SAP नंबर लेंगे, प्लानिंग प्लांट लेंगे। ऑर्डर हेडर में जाके 250 आवर्स मेंटेनेंस और ऑपरेशन टैब में जाके जो एसोसिएटेड मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म करना है उसका डिटेल देंगे। यहाँ पे हम
इंजन ऑयल को रिप्लेस करने वाले हैं और फिल्टर किट को भी रिप्लेस करने वाले हैं। इस एक्टिविटी में जो वर्क आवर लगेंगे और जितने नंबर ऑफ पर्सन इंगेज्ड होंगे उसका रेस्पेक्टिव कॉलम में डिटेल देना है। इसके बाद कंपोनेंट टैब में जाके जो पार्ट्स रिप्लेस करना है और जो POL फिल करना है उसका SAP कोड, क्वांटिटी, स्टोरेज लोकेशन, प्लांट और स्पेयर के केस में बैच नंबर भी देना है। ऑर्डर को इसके बाद रिलीज करना है, सेव करना है। मेंटेनेंस ऑर्डर पे जो कंपोनेंट असाइन हुआ है उसको हम यहां से उसका रिजर्वेशन नंबर लेंगे और इसे स्टोर को देंगे। स्टोर से सामान मिल जाने के बाद हम अपना मेंटेनेंस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे और इस प्रोसेस कंप्लीशन को हम IW41 से SAP में दिखाएंगे। सेव करेंगे। मेरा मेंटेनेंस एक्टिविटी टेक्निकली कंप्लीट हो चुका है और हम कॉस्ट टैब में जाके देख सकते हैं। ये हमारा प्लान कॉस्ट था और एक्चुअल कॉस्ट ये इनकर हुआ है। हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन। The next process is of material management module from CMPDIL. Namaskar, I am Himanshu Vaishist, Deputy Manager of RI5, CMPDIL, Bilaspur. Today I am going to create a goods receipt document for the goods received against a purchase order that was issued to a vendor. First of all, I would like to go to the relevant screen using the transaction code MIGO. Now there are certain parameters that I need to set. Number 1 is transaction event, number 2 is purchase order, delivery note, posting date, quantity in delivery note. Now I will validate the document and save. The document number is created, and this is how a good receipt document creation is done. Thank you. These were some of the process of the modules. Now, yet another initiative by Coal India Limited towards sustainable energy management. The book, Fueling India's Energy Need Through Social, Environmental, and Operational Sustainability, will inspire not only the coal companies, but the entire corporate sector to thrive in the sustainability domain. Today, on this auspicious occasion, we are bringing this book into public domain. May I now request Honorable Union Minister for Coal, Mines and Parliamentary Affairs, Shri Prahlad Joshi ji, Honorable Minister of State for Coal, Mines and Railways, Shri Rao Sahab Patil Danve ji, Secretary Coal, Dr. Anil Kumar Jain sir, Chairman Coal India Limited, Shri Pramod Agarwal sir, to unveil the book titled Fueling India's Energy Needs Through Social, Environmental and Operational Sustainability. May I request GM CCPR, CIL, Shri K. Sunil Kumar sir, to help the dignitaries for unveiling the book. The long-awaited moment to hear from the leader has now arrived.
May I now request the Chief Guest, Honorable Minister for Coal, Mines and Parliamentary Affairs, Shri Prahlad Joshi ji, to come to the podium and address this gathering with his words of wisdom. My colleague in the ministry, Shri Rao Saheb Patil Danve ji, Shri Anil Kumar Jain, Secretary Coal, Shri Pramod Agrawal, all CMDs, all senior officials, and the entire family of the Coal India who have joined physically and virtually. आप सभी को नमस्कार। तो कोल तो बहुत पुरातन है, बरसों से हम कोल निकल माइनिंग भी कर रहे हैं, इसलिए कोल तो पुरातन है, ERP नया है, इसीलिए हम पुरातन भी है और नित्य नूतन भी है, चिर पुरातन नित्य नूतन भी है हम। तो इसीलिए मुझे लगता है तो टेक्नोलॉजी जैसे अपग्रेड होता जाता है, हम जो चिर पुरातन रहता है, जो सर्वकालिक सत्य रहता है, वो तो रहता ही रहता है, लेकिन हम मॉडर्नाइज भी होते जाते हैं। एक कोल इंडिया इसके लिए एक उदाहरण है, ऐसे मैं मानता हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल फॉर दैट। जब मैं नवंबर 1 को, शायद आई थिंक दैट वाज इन 19 नवंबर, आई बिलीव 19 नवंबर जब मैं कोलकाता गया था, तब मुझे ये बताया गया कि इसके लिए 51 मंथ चाहिए। तब मैंने बोला इतना क्यों चाहिए? तो कहने लगा नहीं तो बहुत प्रोसेस होता है, वो होता है। मैंने बोला कम से कम 51 से 41 तक तो लेके आओ यार। 36 महीने बोला था, इफ आई रिमेम्बर राइट। 36 महीने में तो करना चाहिए, नहीं होगा ऐसे ऐसे करके। अंततः जब आप सब लोगों ने मन किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे कहने से हो गया, आप जब मन किया कि इसको जल्दी करना चाहिए और टेक्नोलॉजी उपयोग करना चाहिए, जब आप जो हेल्म ऑफ द अफेयर्स में जो लोग थे, व्हेन दे डिसाइडेड विद द कंसल्टेंट टेक महिंद्रा हो और 3-4 लोग जो पहले से जुड़े हुए हैं, वो जब सब मिलके डिसाइड किया कि इसको जल्दी करना है तो ये हो गया। इसलिए मैं आज भी आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप मन करते तो हो जाता है। इसलिए क्वांटिटी और क्वालिटी में इसमें भी आपको मन लगाने का ज़रूरत है, और इसका ये जो टेक्नोलॉजी है ये उपयोग करके हमको मन लगा के हमको काम करना है। और मैं थोड़ा विनम्रता से, मैं भी इतना टेक्निकल, मैं भी इसमें बहुत नॉलेजेबल तो है नहीं, क्योंकि मेरा फील्ड भी नहीं है ये, लेकिन थोड़ा कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली whenever we bring out the technology, implement the technology, तो टेक्नोलॉजी तो अंततः at the end, the person who is one person who is working, he should update it. जब आप इनवॉइस बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली इतना चले गए ऐसा हो जाता है, लेकिन जब आप प्रोडक्शन करते हैं, आज इतना प्रोडक्शन हुआ और इतने स्टॉक में हमने डाला, ये तो एंट्री करना पड़ता है मैन्युअली एक व्यक्ति को, और इसको ठीक तरह से जहाँ भेजना है, वेयर इट शुड बी सेंट, और इसमें कितना उपयोग हुआ है, कितना कौन सा क्वालिटी का है और कहाँ पड़े हुए हैं, ये सब देखने के लिए किसी एक व्यक्ति को उसको देखना पड़ता है। somebody has to see it, then only things can be properly understood. कभी कभी क्या होता है, डैशबोर्ड रहता है, कोई डैशबोर्ड कोई एक व्यक्ति अपडेट करता रहता है, और कभी कभी अपडेट भी नहीं होता है, हम महीनों तक देखते ही नहीं हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ बहुत इसमें जो GM डायरेक्टर लेवल इसमें जो काम करते हैं,
तो हमारे ज़माने में जब हम कॉलेज और स्कूल जाते थे तब इसका ये सब व्यवस्था नहीं था, तो टेक्नोलॉजी वॉज नॉट यूज्ड, वी आर नॉट यूज टू यूज द टेक्नोलॉजी टू दिस एक्सटेंट। तो इसीलिए सहज रूप से हमको कभी कभी लगता है तो हम इसमें यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मैंने एक बार हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी, जब मैं शुरुआत में चुनाव जीत कर आए तो जब मैं उनसे मिलने गए थे, उन्होंने एक लैपटॉप लेके कुछ टाइप कर रहा था। एट दैट टाइम ही वॉज ऑलमोस्ट 77, 78। मैंने पूछा, आडवाणी साहब अब तो 78 है, आपने कब सीखा? उन्होंने कहा, देखो 91 में जब ये लिबरलाइजेशन सब शुरू हुआ, कंप्यूटराइजेशन, तब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे एंड नरसिंह राव वाज समवेयर 80+ एट दैट टाइम ओनली। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। व्हाई ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, व्हेन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, हम सब हिस्ट्री हम जानते हो। तब नरसिंह राव जी ने एक दिन तो ये कंप्यूटराइजेशन के बारे में कुछ भाषण दिया, तो आडवाणी जी ने उनको बोला, ठीक है, जो अभी अभी चुन के है, कुछ लड़के लोग इसको उपयोग कर सकते हैं, हमको कैसे करना? तो उन्होंने कहा, आप किसी एक व्यक्ति को रख दो, वो आपको गाइड करेंगे। इन्होंने, आडवाणी जी ने कहा, है आप एक ट्रेनिंग क्लास रख दो एमपीज को। तो उन्होंने कहा, कौन आता है? कोई भी नहीं आता है, तो आप रख के देखो। तो उन्होंने शुरू कर दिया, नरसिंह राव जी ने शुरू कर दिया क्लास, कंप्यूटर क्लास। एक ही व्यक्ति रेगुलर पूरा 15 दिन गए, वो 78 ईयर्स के आडवाणी जी थे, बाकी कोई नहीं गया। बाद में उन्होंने सीखा, उनके ब्लॉग अपने खुद लिखते थे और उनका मेल खुद रिप्लाई करते थे एट द एज ऑफ 76, 77। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर हम सब लोग इसमें हमारा माइंड अप्लाई करते हैं तो टेक्नोलॉजी यूज होता है। आज भी हमारा मानसिक स्थिति, मैं सिर्फ इधर जो लोग बैठे हैं उनके बारे में ये नहीं कह रहा हूँ, हम सब लोगों का, जब हम SMS भेजते हैं, मेल भेजते हैं, फ़ोन करके बोलना पड़ता है, एक मेल मैंने आपको भेजा हूँ, थोड़ा देखो करके। बाद में वो देख के वो वापस करते हैं, वो भी उनको हमको बोलना पड़ता है, हमने वापस आपको रिप्लाई दिया है, आप देखो करके। तो दिस मेंटालिटी everybody has to change. I am not criticizing anybody, you have done a good job. But हमारा mindset, अगर if you want to become efficient, then हमारा कुछ mindset हमको change करके टेक्नोलॉजी हमको, हम एग्जीक्यूट किया, हमने शुरू किया, हमने एक सॉफ्टवेयर नया लाया, हम ERP शुरू किया, इससे सब कुछ ठीक हो जाता है। ये मानसिकता तो थे आपको। Now you have ERP is implemented. Now ERP has to be utilized. That is the big challenge, Pramod, to you and your team now. You should make them to use it. So इसका उपयोग पूरे तरफ से करना चाहिए। और जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी हमने उपयोग किया है वह बहुत देश के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी। This has proven, I think, according to my assessment, मैं दिशा मीटिंग भी ले रहा था रिसेंटली, तब मुझे पता चला कि जब प्रधानमंत्री जी जनधन अकाउंट के बारे में बात करते थे, तो हम भी जो लोगों से चुन के आते हैं, लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा घूमता हूँ। मैं मंत्री बनने से पहले बहुत गांव-गांव घूमता था मैं। तो हमको भी इसका असर इतना ज़्यादा होगा। जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि जनधन अकाउंट में आप खाता खुलाओ, जीरो अकाउंट में खुला दो, तो उन्होंने अकाउंट खुलवाया, आधार और मोबाइल नंबर को लिंक कर दिया। जब DBT शुरू हुआ, दिस इज द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, हाउ टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग डाउन द करप्शन एंड इट कैन ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल इज नाउ many of the ineligible beneficiaries थे, वो ऑटोमेटिकली जब ये स्वैपिंग हो गया, आधार,
जनधन अकाउंट और मोबाइल नंबर, ये जब सब लिंक हो गया, स्वैपिंग हो गया, स्वैपिंग होने के बाद 1,70,000 crores was saved because of this technology innovation. और कर्नाटक में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आधार और रेशन कार्ड, और स्पेशली बहुत राज्यों में होगा है जो सरकारी नौकरी करते हैं लेकिन बीपीएल फैमिली के बीपीएल कार्ड है उनके पास। तो उसका रिसेंटली कर्नाटक ने एक ड्राइव लिया, तो सिर्फ ये टेक्नोलॉजी यूज करने के कारण हजारों तो ऐसे, और उनको बोला कितने दिन से बीपीएल कार्ड है उसका पैसा हम आपके सैलरी से हम डिडक्ट करेंगे। तो हाउ टेक्नोलॉजी, what I am telling and what today ERP we are launching, it may be different things, but how technology can be used, if at all, if we properly, जब हम उसको टेक्नोलॉजी कंप्यूटर लाने के बाद उसमें हम सॉफ्टवेयर डालने के बाद how best we can use it, that is the big thing. And we should always remember that whatever नया जो आएगा, जो सीखेगा वही यूथ है। अल्टीमेटली हु इज यूथ? यूथ इज हु डिसाइड्स एंड डज इट। तो विवेकानंद जी कहते थे जो डिसाइड करते हैं, हु ड्रीम्स एंड रियलाइजेज इट, ही इज यूथ। तो यूथ इज ए स्टेट ऑफ माइंड। तो इसलिए हमारे बहुत, जहाँ तक हमारा, मैं ऐसे अनिल जी इधर बैठे इसीलिए नहीं कहता हूँ, ही इज ऑल्सो नियरिंग 60, रिटायरिंग इन अनदर 6-7 months, बट टेक्नोलॉजी के बारे में और उसका उपयोग करने के बारे में उनका बहुत रुचि है। और पटापट हमको तो जब भी मैं पूछता हूँ कुछ तुरंत भेजते रहते हैं। तो दिस माइंडसेट, तो माइंड टेल्स समथिंग एल्स एंड वी शुड चेंज आवर माइंडसेट। माइंड एंड माइंडसेट, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। माइंड इज डिफरेंट and mindset is different. We should change our mindset. That is very important to bring the changes. क्योंकि कोयले के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं। अभी हमारा चैलेंजिंग डेज आर अहेड, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस आर हाई। और देखो अभी हम एक्सप्लोजिव के बारे में, कल मैं किसी एक सीएमडी से पूछ रहा था क्या क्या प्रॉब्लम है। हमको एक्सप्लोजिव प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक्सप्लोजिव के बारे में हम पूरा सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग एक व्यवस्था है। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आज जाके प्रमोद ने किया है ऐसे, मैं नहीं बता रहा हूँ, पहले से है। क्यों ऐसे है, तो ये एक प्रश्न है। तो ऐसे सब जो जहाँ हमको और ज़्यादा बदलाव कर सकते हैं, ऐसे एक एक चीज़ सोच के, क्योंकि हमको अभी दिस इज द टाइम दैट वी should stop the entire import of substitutable and majority because of the under compulsion. This time, this year, which is going to end on 31st March, हमने बहुत कम किया है। फिर भी इतना ही हमको चैलेंज है। 3 बिलियन यूनिट पर डे हो रहा है अभी, 3.0 बिलियन हो रहा है 2-3 दिन से। तो इधर मीडिया वाले भी ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कम से कम 10 दिन से हमारा स्टॉक भी ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना हम सप्लाई कर रहे हैं उतना तो उपयोग हो रहा है। ये सब, दिस इज ए चैलेंजिंग टाइम, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज ए बिग प्रॉब्लम ऑल्सो। वी शुड कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम, दिस शुड कन्वर्ट दिस चैलेंज इनटू एन अपॉर्चुनिटी एंड सी दैट ऑल substitutable coal import has to be stopped. तो ये जो टेक्नोलॉजी हम उपयोग कर रहे हैं, हमने इम्प्लीमेंट किया है, हमारे इसमें शुरू हुआ है, इसका पूरा उपयोग हमको करना चाहिए। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारा चैलेंज इसमें यह है कि हमारा सक्सेस, हमारे पास सॉफ्टवेयर है लेकिन हम पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं करते। जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी हम एफिशिएंट है, उससे इम्प्रेसिव नहीं होगा। वट एवर रिक्वायर्ड टू द कंट्री,
दैट नीड वी हैव टू फुलफिल एंड कंपटीशन आने वाला है। जहाँ तक अभी तक हमारा एडिशनल सेक्रेटरी जो नॉमिनेटेड अथॉरिटी है नागराजू जो बैठे हैं, तो पीछे पढ़ के अभी 38 हुआ है, 42 कोल ब्लॉक्स हम ऑक्शन, कमर्शियल कोल ब्लॉक्स के लिए हम ऑक्शन कर चुके हैं। तो धीरे धीरे जैसे एक कोल ब्लॉक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, प्रोडक्शन शुरू होगा, ठीक है, कुछ 2 वर्ष में होगा, 3 वर्ष में होगा, 5 वर्ष में होगा, 5-6 वर्ष में होने वाला है। तब हमको मार्केट से भी कंपटीशन होने वाला है। एज फार एज द कैप्टिव कोल ब्लॉक्स आर कंसर्न, दिस टाइम हमने 60 मिलियन टन जो होता था, नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू मेक इट 120 मिलियन, एग्जैक्टली डबल। उधर से भी आपको कंपटीशन होने वाला है। और टू एन एक्सटेंट देयर विल बी कंपटीशन फ्रॉम दी नागराजू साइड। तो ये सब हमको एफिशिएंट बनने के लिए हमको बहुत बड़ा चैलेंज है जी। वी शुड बिकम एफिशिएंट। इफ यू डोंट बिकम एफिशिएंट, then naturally somebody will come and he will become efficient. So don't allow it to happen. You yourself be efficient, try to be more active and more user friendly. I mean, आप तो इसको टेक्नोलॉजी यूज करने का एक आपको अभ्यास होना चाहिए. You should try to use it to the best possible extent and इसका पूरा उपयोग हमको एफिशिएंसी बढ़ाने में हमको होना चाहिए. इतना कहते हुए 15 महीने ऑलमोस्ट 15 मंथ्स अर्ली आप लोगों ने इसका इम्प्लीमेंट किया है. मैं आपको हृदय से धन्यवाद समर्पित करता हूं. जैसे आपने एफिशिएंटली ये काम किया है ऐसे ही और ज़्यादा प्रोडक्शन में भी पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छा हुआ है. मैं ये नहीं कहता हूँ कि अच्छा नहीं हुआ है, तो पहले के कंपैरिजन में अच्छा हुआ है. और अच्छे कैसे करना ये सोचिए. मंत्रालय और भारत सरकार पूरे आपके साथ है. हमारा टारगेट जो है वो टारगेट अचीव इस बार तो हो जाएगा ऐसे मैं मानता हूँ. 670 हो जाएगा ना. हाँ तो मैक्सिमम जो होता है देखेंगे, लेकिन जो टारगेट इस बार और नेक्स्ट ईयर हम रखते हैं इसको तो अचीव करना है. यही कामना करते हो आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी समर्पित करता हूँ, अभिनंदन भी देता हूँ. जय हिंद, जय कर्नाटक. माननीय मंत्री जी के बहुमूल्य मार्गदर्शन से हमारी कंपनी दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रही है. आपके आशीर्वचनों के लिए सहृदय धन्यवाद सर. May I request Chairman Coal India Limited, Shri Pramod Agarwal sir, to present a memento to Honorable Minister for Coal, Mines and Parliamentary Affairs, Shri Prahlad Joshi ji, and Honorable Minister of State for Coal, Mines and Railways, Shri Rao Sahab Patil Danve ji. May I now request Director Technical Coal India Limited, Shri Veera Reddy sir, to present a memento to Secretary Coal. May I now invite General Manager ERP, Shri RKP Singh sir, to deliver the vote of thanks. Good evening. I am thankful to get this opportunity to deliver the vote of thanks on this historic day. At the outset, I would like to thank our Honorable Minister Prahlad Joshi sir for his presence on this significant day despite his busy schedule.
Also like to thank our Honorable Minister of State Rao Sahab Patil Danve sir for his presence on this day. I extend my gratitude and thanks to Secretary Cole, Dr. Anil Kumar Jain sir, for guiding us constantly and sparing his valuable time with us. I take this opportunity to thank all officials of the Ministry of Coal for this. I also thank Chairman sir for his constant encouragement and motivation. Also thanks our Director Technical sir for helping and guiding us always. My heartiest thanks to CMD sirs of subsidiary companies, functional directors of CIL who have been instrumental in ERP implementation. Thank you sirs for your valuable time. I also take this opportunity to thank functional directors, HODs of CIL and subsidiaries for their constant support and guidance, for having spent their invaluable effort and time in ERP implementation. My special thanks to the entire team of ERP, project leaders, area general managers, subject matter experts, and end users of all subsidiaries, the team of Tech Mahindra, Accenture, our system integrators for ERP implementation, ERP consultant from MDI, the team of Tata Communication and CIPL, our cloud data center partners, systems and ERP department of CIL and subsidiary. I also like to express my sincere thanks to the whole team of officials of Delhi office CIL under the leadership of GMCIL. Your effort and contributions is commendable. Last but not the least, I would like to thank everyone who was directly or indirectly involved in making today's event a grand success. To everyone watching from locations outside Delhi, thank you all for joining today's ceremony virtually. Honorable Minister sir said technology like ERP is available. Develop the mindset to utilize the ERP to best possible way. Sir, we will certainly follow that in latent speed. Finally, thank you for the most beautiful gift of all. You gave your time. Thank you, sir. Thank you, sir. With this, we come to the end of a wonderful event. Thank you for all for being a part of this webcast. Namaskar, Shubh Ratri. I request you all to proceed for dinner.